That's my बयानबाजी। वेनेजुएला की संसद में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बेटे ने अपने पिता को भावुक संदेश दिया। उन्होंने कहा, पापा, आपने हम सबको मजबूत बनाया, आपके लौटने तक हम आपका फर्ज निभा रहे हैं। मातृभूमि सुरक्षित हाथों में है। यह संदेश ऐसे समय में आया है जब देश राजनीतिक तनाव के दौर से गुजर रहा है और राष्ट्रपति मादुरो के समर्थक उनकी अनुपस्थिति में एकजुटता दिखा रहे हैं। Y a ti, papá, te digo, hiciste de todos nosotros en la familia gente fuerte. Aquí estamos, cumpliendo hasta que regrese. La patria está en buenas manos, papá. Y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela. Y vas a ver a los muchachos, Cilia. Los vas a ver, Cilia. Nos vamos a ver. Que viva Venezuela, que viva la patria. Y aquí estamos firmes para lo que tengamos que hacer por nuestra patria. Los amamos mucho. Muchas gracias. इस बीच वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर अमेरिका ने यूएन में अपना पक्ष रखा है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि यह किसी देश पर कब्जा या युद्ध नहीं है, बल्कि कानून के तहत की जा रही वैध कार्रवाई है। अमेरिका ने इस पूरी कार्रवाई को सैन्य नहीं बल्कि कानूनी ऑपरेशन बताया है। The United States successfully carried out a surgical law enforcement operation facilitated by the U.S. military against two indicted fugitives of American justice, narco-terrorist Nicolas Maduro and Celia Flores. Colleagues, Nicolas Maduro is responsible for attacks on the people of the United States, for destabilizing the Western Hemisphere, and illegitimately repressing the people of Venezuela. As Secretary Rubio has said, there is no war against Venezuela or its people. We are not occupying a country. This was a law enforcement operation in furtherance of lawful indictments that have existed for decades. The United States arrested a narco-trafficker who is now going to stand trial in the United States in accordance with the rule of law for the crimes he's committed against our people for 15 years. A similar action was taken in 1989 against Manuel Noriega. He was arrested, indicted, convicted in a court of law, served in prison in the United States and in Panama, and the Panamanian people, the American people, are safer for it, and undeniably, the region was more stable. This law enforcement action was directed consistent with the President of the United States' responsibility as Commander-in-Chief to protect America. डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के ग्रीनलैंड पर दिए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप डेनमार्क के ग्रीनलैंड द्वीप पर हमला करते हैं तो इसका मतलब नाटो गठबंधन का अंत होगा। For det første, så mener jeg, at man skal tage den amerikanske præsident alvorligt, når han siger, at han ønsker Grønland. Men jeg vil også gøre klart, at hvis USA vælger at angribe et andet NATO-land militært, så hører alting op. Altså inklusiv vores NATO og dermed den sikkerhed, som er blevet tilvejebragt siden afslutningen på 2. verdenskrig. Danmark har altid været en god allieret til USA. Det ønsker vi fortsat at være, men jeg bliver også nødt til at anholde noget af det, der bliver sagt fra amerikansk side, og vi vil selvfølgelig ikke affinde os med en situation, hvor man truer os og Grønland på den her måde. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भट्ट हत्याकांड को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा है कि बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए किसी भी स्तर की जांच से पीछे नहीं हटेंगे। सीएम ने कहा है कि सरकार पूरे मामले में पारदर्शिता बरतते हुए दोषियों को सख्त सजा दिलाएगी और किसी भी तरह की राजनीति या साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप बताइए, आपको लग नहीं रहा है कि षड्यंत्र है? अगर ये मोबाइल बंद करके जाना, एक ऑडियो रिलीज करके, एक ऑडियो रिलीज होता है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ नहीं होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती है, और हमारे जो प्रभारी जी का नाम लिया गया, प्रभारी जी ने अपने, आप लोग भी सोशल मीडिया देखते हैं, पुलिस ने भी वेरीफाई कर लिया, सारे अकाउंट ट्विटर सब देख लिए उनके, वो पिछले उस दिन 10 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में उत्तराखंड में उनका आना ही नहीं हुआ कभी।
ये तो आप लोगों ने भी सारा रिकॉर्ड देख लिया होगा, उनकी जो पुरानी फेसबुक इत्यादि देख लेंगे तो उसमें आ जाएगा सारा। अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए, अगर उनके पास कुछ है तो भागे क्यों हैं? जेएनयू कैंपस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी के मामले पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा है कि देश को तोड़ने की साजिश रचने वालों की जमानत याचिका का खारिज होना स्वागत योग्य कदम है। तरुण चुग ने कहा है कि देश की एकता और अखंडता सर्वोपरि है और इसके साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। जेएनयू में जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के खिलाफ अपशब्द कहे गए, नारे लगे, क्या कहेंगे इस पूरे विषय? नक्सलवाद के समूल नाश से संविधान विरोधी, राष्ट्र विरोधी, अर्बन नक्सल का ये हताशा निताशा का रंग इन हिंसक प्रवृत्ति के देश विरोधी नारों में स्पष्ट दिख रहा है। देश के को तोड़ने की साजिश षड्यंत्र रचने वालों को बेल रिजेक्ट होना ये स्वागत योग्य कदम है। देश की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता सर्वप्रिय है, उससे कोई समझौता नहीं। निर्दोषों की हत्या करने वाले, वो चाहे पहाड़ में हो या जंगल में हो, वो आतंकवादी हो या अर्बन नक्सल हो, उनकी कब्र खुदेगी ही, वो बचेंगे नहीं। देश को तोड़ने वालों को कब्र में पहुंचाया जाएगा। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कुलदीप सेंगर को बेल मिल जाती है, बिल्किस बानो के केस रेपिस्टों को बेल मिल जाती है, लेकिन सोनम वांगचुक जेल में है। इमाम का जो है बेल रिजेक्ट हो गया, नेक्स्ट ईयर के लिए फॉरवर्ड कर दिया, किस तरह से देख रहे हैं इस डिसीजन को? मुझे लगता है यही बात है। एक तरफ ये सारी बातें हैं, चलो उसमें न जाते हुए भी कुलदीप सेंगर को बेल मिल जाती है। जो रेपिस्ट है, जो चाइल्ड रेपिस्ट है, जो रेपिस्ट है, जो जिन्हें रेप करके हत्या की है, उसको बेल मिल जाती है। बिल्किस बानो का जिसने रेप किया उसको मिल जाती है बेल। तो देश में अगर आप देखें तो सोनम वांगचुक साहब अभी आज जेल में है, तो न्याय की अपेक्षा में है सारे लोग। मैं किसी के एक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुलदीप सेंगर को बेल मिल सकती है। इससे बड़ा मिसकैरेज ऑफ जस्टिस मुझे लगता है हमारे देश में हो सकता है। आदित्य ठाकरे जी, आप 5वीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एसआईआर मामले में चुनाव आयोग के खिलाफ एक आम नागरिक के तौर पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पार्टी की विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि यह बहुत दिलचस्प है कि ममता बनर्जी कभी खुद को मुख्यमंत्री बताती हैं और कभी आम नागरिक। उन्होंने आरोप लगाया कि जब केंद्र की आयुष्मान भारत योजना से बंगाल के लोगों को फायदा हो सकता था, तब ममता बनर्जी ने इसकी मंजूरी नहीं दी। As a common man, actually we have seen that Dona Singh, she moved to Supreme Court and field matter regarding the SIR and. It is very interesting, that our chief minister, sometimes she becomes the chief minister, sometimes she becomes the common man. Now when Ayushman Bharat was given to all states and every individual of every citizen of Bengal would have benefited, she didn't think about the common man. Today, when her vote bank, all these Rohingyas and infiltrators from Bangladesh and dead voters, shifted voters, duplicate voters, names have been deleted by Election Commission. Now she wants to go to Supreme Court by using our money, our taxpayers' money, which she has been doing for the last 15 years, going to Supreme Court, engaging the top level lawyers whose one appearance goes to lakhs. And today she's giving, that threatening that I will go to Supreme Court as a common man and I will challenge the Election Commission. Why, Mamata Banerjee, why are you challenging? Don't you want that these illegal infiltrators' names be deleted who have been living in Bengal? We understand that your cadres have provided, your public representative have given them the documents, provided them the documents. We understand that. But who have been stealing our adhikar, what we are supposed to get? Don't you think that you should be by the people as common man? Are, the dead voters, shifted voters, duplicate voters, these names have been deleted. And you have been using these names, this 55, 58 lakhs whose names have been deleted.
राजस्थान में विधायक निधि में कमीशन लेने के आरोप में शामिल विधायक रितु बनावत ने एक अखबार में खबर प्रकाशित करने के मामले में माफी मांगने की चेतावनी दी है। विधायक ने चुनौती दी कि अखबार साबित करे कि उन्होंने कभी डिमांड की, पैसा लिया या लेटर दिया। आपने क्या पक्ष रखा सदाचार कमेटी ने? देखिए, सदाचार कमेटी ने आज जब बुलाया था तो उन्होंने कहा था कि जो आपके पक्ष के साक्ष्य हैं वो रखने हैं। तो जैसा कि वीडियो का एडिटिंग का बात मैंने पहले भी गई थी, उसकी एफएसएल रिपोर्ट मैंने सौंप दी है। जो मेरे घर और ऑफिस के वीडियोस हैं, जो मतलब सीसीटीवी फुटेज है, वो उनको सौंपे हैं। और भी जो तथ्य इस संदर्भ में मेरे पास थे कि मेरी अनुशंसाएं जो हुई है उनके लेटर्स हैं, रिमेनिंग फर्ड्स है उसको मैंने अनुशंसा कर दी है, उसके लेटर्स हैं, वो सारी चीजें मैंने उनको सौंप दी है। और सदाचार कमेटी ने भी ये माना है कि पूरे वीडियो में कहीं भी मुझसे कहीं भी किसी तरह की कोई भी पैसे की लेन देन की बात नहीं हुई है। उस पत्रकार ने भी माना, लेकिन क्योंकि एक बार खबर छाप दी जाए तो उस छापने के बाद में उसे पीछे कैसे हटा जाए, इसलिए वो पत्रकार भी और वो पेपर भी, वो अखबार भी पीछे हटने की नहीं कर रहा है और अपनी बात नीचे नहीं गिराना है। इसलिए वो लगातार, क्योंकि मैं देख रही हूँ लगातार वो एक ही बात कह रहा है, कमीशन मांगने वाले विधायक। मैं ये कह रही हूँ, कमीशन अगर मांगा है तुमसे तो उसके सबूत तुम लेके आओ भाई। मैंने जो मेरे पास थे वो चीजें तो मैंने दे दी। अब प्रूव दैनिक भास्कर को करना है कि रितु बनावत ने कब उनसे विधायक रितु बनावत ने कब उनसे कोई डिमांड करी, कोई पैसा लिया या कोई लेटर दिया। और जब उनके पास कोई सबूत नहीं है तो अभी भी वक्त है, माफी मांगो, खंडन छापो, तो बड़ा दिल रख के माफ कर दूंगी। और मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें क्लियरली, अंतिम जवाब जो है मैंने पेश कर दिया है। और भी सदाचार समिति जब चाहेगी, जब बुलाना चाहे, उनके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ये मैं बोल के आई हूँ और मेरी तरफ से सब चीजें उनको पेश कर दी गई हैं जो जो साक्ष्य हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी सरकार हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन हालात बदलते रहते हैं और बार बार उन्हें टेस्ट करते हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य का दर्जा वापस दिलाना उनकी प्राथमिकता है। वहीं फरवरी में शुरू होने वाले बजट सत्र और मार्च अप्रैल में शुरू होने वाले टूरिज्म सीजन को सफल बनाना भी सरकार के सामने अहम चुनौती है। अभी तो साल शुरू हुए 6 दिन हो गए ना, क्या पता कौन सा चैलेंज होगा। पिछले साल किसी को उम्मीद थी कि पहलगाम जैसा हमला होगा या ऑप सिंदूर जैसे हालात होंगे, या फिर जो बरसात अगस्त सितंबर में जिसका अभी भी हम खमियाजा भुगत रहे हैं। हम अपनी तरफ से तमाम चीजों के लिए तैयारी करते हैं, बाकी हालात क्या बनेंगे उनका ना आपको पता है ना मुझे, लेकिन हम अपने तरफ से तो जो हमारे मेन चैलेंजेस हैं, आपने खुद जिक्र किया, जम्मू कश्मीर दोबारा रियासत बने वो हमारे लिए चैलेंज है। फरवरी 2 तारीख को बजट का सेशन शुरू होगा, बजट की तैयारी करनी है, बजट हाउस के सामने पेश करना है, बजट हाउस से मंजूर कराना है, वो एक चैलेंज है। मार्च अप्रैल से हमारा टूरिज्म सीजन शुरू होगा, उम्मीद करते हैं कि टूरिज्म सीजन हमारा अच्छा कामयाब रहे, वो चैलेंज है। चैलेंजेस रहते हैं सब टेलीविजन्स हैं वो बहुत एक तरह से उम्मीद लगाए हुए हैं कि बजट सेशन भी अब होगा, उनके लिए कोई बड़ा तोहफा होगा। अब मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, बजट में क्या होगा क्या नहीं होगा, किन चीजों का जिक्र होगा किन का नहीं होगा, मैं अभी इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। जाहिर सी बात है कि बजट तैयार होकर सबसे पहले तो हाउस के सामने पेश होगा। सर, एक बीजेपी के एक बड़े नेता हैं श्यामलाल शर्मा, वो कहते हैं कि जम्मू को अलग से स्टेट बनाइए। अब लद्दाख को अलग यूटी बना के लद्दाख का बेड़ा गर्क तो उन्होंने कर ही लिया। अब अगर जम्मू को अलग करके जम्मू का बेड़ा गर्क करना तो करें, लद्दाख उनसे संभला नहीं, जम्मू को क्यों बिगाड़ रहे हैं वो। कहीं ना कहीं तो उनकी सियासत फेल हो गई है कि अब उनको जम्मू का स्टेटहुड जो है याद आया, जब बना रहे थे यही लोग बना। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें